So in the previous class, we were discussing stack and queue, but one of you have brought to my notice that we have left a topic polynomial while discussing the linked list, because after that I was not able to take your class and that topic got left. Okay, and along with that there was one extra topic which you said as the abstract data type, so that also I can discuss. Okay, so let me first start with the abstract data type. This topic is there in your first unit as well as in the stack and queue unit, second unit. Okay, so make the heading as abstract data type. First and foremost, what is a data type? What is a data type? If I am writing int a, b, c, or if I am writing float a, b, c, what is the meaning of this thing? What is the meaning? What is the meaning? That this a, b, c Yeah, are of integer type. Yes, yes, speak. Yes. What is the meaning of this? That a, b, c are of? we are declaring the variables in the particular data type. Huh. So what is the meaning of data type here? That the type of the data is, Integer and float. yeah, integer or float. Okay. So what is the meaning of anyone else who want to speak anything? What is the meaning of this? That if I am taking a variable a, then this variable should take some input like this. Means a number should have a floating point. Or if I am saying that this number is integer, please mute your mics. So if I am saying that this is a number, this number is an integer, that means A, B or C can take integer values 15, 17, 28. It cannot take point values, floating point numbers. Okay. While we have another data type which we call it as abstract data type. What is the meaning of abstract data type? जैसे कि आप लिख रहे हो struct node, है ना? आप क्या कर रहे हो उसके बाद डिफाइन कर रहे हो कि नोड किस टाइप की है, इंटीजर टाइप का डेटा है, पॉइंटर टाइप का उसमें लिंक है, मतलब स्ट्रक्ट नोड स्टार टाइप का उसका पॉइंटर है. ओके, तो व्हाट यू आर डिफाइनिंग? यू आर डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर. नाम जिस स्ट्रक्चर का क्या है? नोड. तो जब भी आप फ्यूचर में स्ट्रक्ट नोड और स्टार, अगर मैं p लिख रही हूँ तो मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल बनाया है p जो किस टाइप का है? स्ट्रक्ट नोड टाइप का. तो ये स्ट्रक्ट नोड जो है मेरे पास क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है. ओके, नोट डाउन द डेफिनेशन. Note down the definition in your notebook. An abstract data type is the specification of the data type which specifies is the specification of the data type which specifies the logical and mathematical specifies the logical and mathematical model of the data type. Okay, so data type basically it brings a class of data objects together. For example, if I'm taking this is another data type, this is another data type. These are bringing various data types together. So we call it as an abstract data type. Okay, so nothing more than that is required for you to understand. Only 1 or 2 marks portion will arise from here, but you must know what is an ADT. Okay, so it just combines the different types of it is just the class of data objects together, and along with that operations for creating and manipulating that
objects. For example, if I'm taking this data, this is of different data type, then this is pointer, it is of different data type, and collectively all the whatever you are writing inside this, all will be treated as a struct, all will be treated by with the help of this name. So this becomes the abstract data type for that particular objects. Okay, so moving forward, next we have is the polynomials using linked list. What is a polynomial? Whenever we have an expression like this, for example, I have an expression like this, which consists polynomial values of x, then you can represent these values using a linked list. How? As you can see, this particular block is made up of two components. One is the coefficient of x, another is the exponent of x. Okay, so what I can do, I can create a linked list with three blocks, where one block will represent the coefficient, that is 6, another block will represent the exponent, that is 4, and next would be link part, that will link you with the next node. Okay, so if I have to make a polynomial using linked list, then I have to write something like this: 6, 4, next is 2, 3, next is 5, 2, next is 9, 1, and next is 16, 0, none. Okay, so this polynomial will be represented using a linked list like this. Any doubts in here? What I have done, I have used a node structure like this. Node structure like this: coefficient, exponent, and link part. Okay, so any doubt in there? This problem, how I have converted this to this? How I have converted this polynomial into a linked list representation of this. This is my first node. Whatever the node having the highest power, that will be the first node. Then subsequent power will have be the next node. Subsequent power will be the next node, and so on till I reach to the last node or last expression. जो भी आपका expression है, last. Using a particular variable. Say again. It's you, ma'am. The implementation is only in particular single variable. I can do the implementation in more than one variable as well. For example, if I have something like this, these are two variables, or let us take one more variable. Okay, so these are three variables. So you have to specify. देखो कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट कॉमन होगा तो कोफिशिएंट एक ही वैल्यू ले लो, ठीक है. पावर ऑफ एक्स फर्स्ट ले लो, पावर ऑफ वाई सेकेंड ले लो, पावर ऑफ जेड थर्ड ले लो, और फिर एक लिंक पार्ट ले लो, ठीक है. ऐसा कुछ कर सकते हैं, मतलब कोफिशिएंट, बिकॉज आप कोई भी पॉलिनोमियल टर्म रहेगी उसमें कोफिशिएंट एक ही होगा, जैसे कि आप चाहे वाई जेड है या जो भी है उसका कोफिशिएंट सिंगल ही होगा. तो अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट होगा? 3 कोफिशिएंट, power of x is 2, power of y is 0, power of z is 0. This will be linked with 2xy square. Okay, so 2 is coefficient, value of power of x is 1, power of y is 2, power of z is 0. Next is 5y3, coefficient is 5, value of x is 0, power of x is 0, power of y is 3, power of z is 0, and next 7 is the coefficient, x is 0, y is 1, z is 1, and null. Okay, so it depends upon you. आप चाहो तो coefficient को अलग भी रख सकते हो, जैसे मैंने ऐसे लिखा, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि x y z की पावर्स पहले लिख लिया
एक्स, वाई, जेड और कोफिशिएंट। आप जिस भी टाइप का डिक्लेयर करोगे उस टाइप का आपका नोड बन जाएगा। आपको कैसे डिक्लेयर करना है, जैसे हम स्ट्रक्ट नोड लिखते हैं तो स्ट्रक्ट नोड, आप जो भी आप उसको नाम देते हो वो नाम देके, तो आपको क्या देना है, इंट टाइप का कोफिशिएंट लेना है। ठीक है, और किस टाइप का क्या लेना है, एक्सपोनेंशियल भी आपका इंटीजर टाइप का ही रहेगा। ठीक है, इंट टाइप का एक्स का एक्सपोनेंशियल ले लो, इंट टाइप का वाई का एक्सपोनेंशियल ले लो, इंट टाइप का जेड का एक्सपोनेंशियल ले लो। ओके, और उसके बाद आपको बस एक पॉइंटर लेना है, वो तो स्ट्रक्ट नोड स्टार टाइप का पॉइंटर रहेगा। स्ट्रक्ट नोड स्टार, उसको कोई भी नाम दे दो, फर्स्ट या लिंक, नहीं फर्स्ट नहीं ना, लिंक लेते हैं ना हम हमेशा, लिंक ले लो। हाँ ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस हिसाब से डिफाइन किया है। अगर आप ये कोएफिशिएंट अगर आपको नीचे डिफाइन करना है तो आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हो। आप जिस सीक्वेंस में डिफाइन करोगे आपका जो स्ट्रक्चर है उसी सीक्वेंस में बनेगा। मतलब अगर मैंने ये डिफाइन किया है तो मेरा स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, यहाँ पे आएगा कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट एक्स का एक्सपोनेंट, वाई का एक्सपोनेंट, जेड का एक्सपोनेंट और लिंक। मतलब अगर ये स्ट्रक्चर मैंने ऐसे डिफाइन किया है स्ट्रक्ट नोड से, तो मेरा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बनेगा। कोई डाउट है इसमें? नो मैम। इम्प्लीमेंटेशन कर लोगे? इम्प्लीमेंटेशन करने में आपको क्या करना है, ये स्ट्रक्चर आपको डिफाइन हो गया। अब अगर आपको इसमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो वैल्यूज कैसे इंसर्ट करनी है, सिंपल है। आप अगर एक पीटीआर को, नई नोड को लेते हो तो पीटीआर का कोफिशिएंट आप उसमें इक्वल कोई भी वैल्यू डाल लो, पीटीआर का एक्स एक्सपो उसमें भी कोई भी वैल्यू डाल लो, पीटीआर का वाई एक्सपो उसमें भी कोई वैल्यू डाल लो। ठीक है, ये सारी वैल्यूज डल गई तो उसके बाद नेक्स्ट नोड पे चले जाओ। तो आपको एक नोड में पहले 4 वैल्यूज डालनी होंगी, फिर लिंक पार्ट उससे कनेक्ट करना होगा और फिर देन यू कैन मूव टू नेक्स्ट नोड। इज इट क्लियर? इम्प्लीमेंटेशन इज क्लियर? यस मैम। ओके ओके ओके, एनी अदर डाउट्स? पॉलिनोमियल क्या होता है ये आपको पता है? पॉलिनोमियल टर्म्स क्या होती हैं? पॉलिनोमियल एक्स और वाई जेड में आपकी कुछ पावर्स में टर्म्स रहती हैं, जिसको हम सिंपल, अगर हम अपने किसी एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी भी चेक करते हैं तो वो भी मोस्टली पॉलिनोमियल में रहती है। ठीक है, तो व्हाट इज नेक्स्ट, यू हैव टू परफॉर्म 2 ऑपरेशंस ऑन अ पॉलिनोमियल, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब एडिशन करने के लिए कंसेप्ट क्लियर है, बहुत क्लियर है। अगर सिंपल मैथ्स में करती हूँ तो मुझे क्या करना है, सिर्फ ये चेक करना है कि किसी जो नोड है, किसी जो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल है, उसकी जो पावर्स है वो क्या है। ठीक है, जैसे मेरे पास एक ये पॉलिनोमियल है और एक पॉलिनोमियल है ये 7x³ 3x² प्लस x प्लस 7। तो मुझे अगर इन दोनों नंबर्स की एडिशन करनी है तो मुझे बस सबसे पहले क्या मैच करना है कि इनकी जो पावर्स है वो क्या है ना। और अगर पावर्स सेम है तो मुझे क्या करना है, उन दो के कोफिशिएंट्स को ऐड करना है। जैसे ये दोनों नोड्स अगर हम देखे जाएं तो इनकी पावर्स क्या है, x की 0, तो मुझे इन दोनों के कोफिशिएंट्स को ऐड करना है और x 0 लेके चलना है। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों की पावर्स क्या है, x है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और रिजल्ट आ जाएगा 11x। नेक्स्ट दोनों की पावर सेम है 5x², दोनों की पावर सेम है 13x³ एंड 5x4। सो जनरल एल्गोरिदम जो है वो आपकी क्या बोलती है कि हमें दोनों लिंक लिस्ट को एक साथ चेक करना है। दोनों लिंक लिस्ट को एक साथ चेक करने का क्या मतलब है, एक लिंक लिस्ट का पॉइंटर आप इस पे रखो, फर्स्ट इसको मानो, फर्स्ट 1 मान लो, इसको फर्स्ट 2 मान लो। फिर आपको फर्स्ट 1 जो नोड है जहाँ से स्टार्ट हो रही है उसमें जो x की पावर है उसको चेक करना है।
अगर उसमें एक तो दोनों ऑब्वियसली ऐसे ही लिखी जाएंगी कि ये 4 है, तो अगर ये 3 है तो इसका मतलब 4 वाली इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो जब हमने फर्स्ट वन चेक किया, जैसे मैं इन दोनों लिस्ट को, लिंक लिस्ट को ऐसा बना लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये हो गया 5 4, ये हो गया 6 3 2 2। कभी भी आपको समझ ना आए तो लेट डू आस्क मी, ओके। क्योंकि कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो लगते छोटे से हैं बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ये एक लिंक लिस्ट है, एक लिंक लिस्ट है ये 7 3 3 2 1 1 और 7 0, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैंने इसका फर्स्ट ले लिया फर्स्ट 1, इसका फर्स्ट ले लिया फर्स्ट 2, ठीक है। अब आपको क्या मैच करना है, इस पे पॉइंटर रख लो, मतलब इन दोनों के अलग अलग उसको स्टार्ट कर लो। लेट से इसको PTR 1 से स्टार्ट कर लिया, इसको PTR 2 से स्टार्ट कर लिया। तो हमें क्या मैच करना है, PTR 1 का जो हमारे पास एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट, अगर वो, मतलब आप दोनों को इनको मैच करना है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आपको क्या परफॉर्म करना है, एडिशन। अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, आप चाहे तो लिख लो इफ इज इक्वल टू पॉइंटर टू एक्सपो। तब मुझे क्या करना है, अगर ये दोनों इक्वल हैं देन व्हाट आई हैव टू डू, I just have to add the coefficients. So you have to take one of the coefficient। मतलब कैसे करोगे वन ऑफ द कोफिशिएंट, आप चाहो तो इस वाली लिंक लिस्ट को अपडेट कर दो, चाहे इस वाली लिंक लिस्ट को अपडेट कर दो, या एक और नई लिंक लिस्ट बना लो और वहाँ पे स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप इसी लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, मतलब इसी लिंक लिस्ट को अपडेट कर रहे हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ, पॉइंटर 1, अभी अगर पॉइंटर 1 यहाँ पे है, एज्यूम करो ये दोनों इक्वल आए हैं, पॉइंटर 1 कहाँ पे होगा, अगर इक्वल आएंगे तो यहाँ पे, ठीक है। इतना बात आपको समझ आ रही है, ये दोनों इक्वल तब होंगे जब ये एक्सपोनेंट्स इक्वल होंगे। तो पॉइंटर 1 कहाँ होगा, यहाँ, और पॉइंटर 2 कहाँ होगा, यहाँ पे। तो पॉइंटर 1 का जो कोफिशिएंट पार्ट है वो मैं किसके इक्वल कर रही हूँ, पॉइंटर 1 कोएफिशिएंट प्लस पॉइंटर 2 कोएफिशिएंट, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो, अगर इक्वल नहीं है तो आपको क्या करना है, वो नोड एज इट इज पॉइंटर 1 में डाल देनी है। पॉइंटर 1 में क्यों डालनी है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ से लेके चलना है, फर्स्ट यहाँ से लेके चलना है या यहाँ से। तो उसके लिए फर्स्ट मैच कर लो कि हाईएस्ट पावर किसके पास है। इसके पास 4 है, इसके पास 3 है, इसका मतलब रिजल्टेंट में ये नोड तो रहेगी रहेगी। तो हम इसी वाले का पॉइंटर क्या करेंगे, अपडेट, जैसे मैंने यहाँ पे किया, पॉइंटर का 1 का ही कोफिशिएंट हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो अगर कोई नोड ऐसी है जो पॉइंटर 2 में या सेकेंड लिंक लिस्ट में है और फर्स्ट में नहीं है, और उससे रिलेटेड पावर्स भी फर्स्ट में नहीं है, तो वो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ हम कॉपी करेंगे, नई नोड को वहाँ पे कॉपी करेंगे, ठीक है। तो एक जनरल एल्गोरिदम है, वो आप लिख लो, मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ। लिखो, स्टेप नंबर 1, रिपीट while there are terms in both polynomials। रिपीट, लिखो, ये आप लोगों लिखो, मैं आपकी स्क्रीनशॉट्स मांगूंगी कभी भी नोटबुक के। रिपीट while there are terms in both polynomials। जब तक दोनों पॉलिनोमियल्स में टर्म्स हैं तब तक आपको रिपीट करना है, ओके। नंबर 2, ऑब्टेन वैल्यूज फॉर ईच टर्म। ऑब्टेन वैल्यूज फॉर ईच टर्म। Number 3, if the exponents, if the are equal, if the exponents of the corresponding terms are equal, then add the coefficients. Then add the coefficients and place the sum in the resultant polynomial. If exponents are equal, Ma'am, please then repeat the line.
Yes, if the exponents of the corresponding terms in the two polynomials are equal, then add the coefficients and place the sum in the resultant polynomial. ओके नंबर Okay, ma'am. अब बी जैसे मैंने ए लिखा है उसके बाद बी लिखूं. इफ exponent of first polynomial is greater than the corresponding exponent term of the second polynomial, then add the term to the resultant polynomial. Full stop. Also copy the exponent term of the first polynomial to the exponent term of the resultant polynomial. Number C. Ma'am, please repeat the line. Which one exponent? Yes, ma'am. Copy the exponent term of the first polynomial. No worries, I'll write this down and upload it. Okay, so you just note down main points. जितना आपने लिखा है उतना बताओ कितना लिखा है, कहाँ तक लिखा है? मैम बी वाला रिपीट कर दीजिए. बी वाला पूरा. यस मैम, बीच में ही छूट गया था. Okay. If the exponent of the first polynomial is greater than the corresponding exponent, if the exponent of the first polynomial is greater than the corresponding exponent of the second polynomial, then copy the coefficient of the first polynomial to the coefficient of the resultant polynomial. Also, copy the exponent term of the first polynomial to the exponent term of the resultant polynomial. ठीक है, तो बी पार्ट क्या बोल रहा है कि अगर फर्स्ट आपका ग्रेटर है सेकंड से, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये फर्स्ट वाला केस जो है, जैसे कि अगर मैं यहीं पे एलसिफ लिखती हूँ, एलसिफ पॉइंटर 1 का जो एक्सपोनेंट है अगर वो ग्रेटर है पॉइंटर 2 के एक्सपोनेंट से, तो व्हाट वी हैव टू डू नथिंग. यू जस्ट हैव टू टेक द रिजल्टेंट कोफिशिएंट टर्म जो है वो आपको उसमें डालनी है. रिजल्टेंट टर्म जो है, लेट मैं अगर PTR1 को ही मान के चल रही हूँ, ठीक है, कि PTR1 ही मेरा फाइनल है, तो PTR मतलब ये तो एक्स्ट्रा ही हो गया. आप चाहो तो यहाँ पे PTR3 ले लो, एक अलग से नोड रिजल्टेंट पॉलिनोमियल्स ले लो, तो उसमें PTR3 ऐड लिख देती हूँ मैं यहाँ पे. ओके, PTR3 के कोफिशिएंट में क्या आ रहा है, PTR1 उसका सम. तो यहाँ पे अगर मेरा ये ग्रेटर है तो डायरेक्टली PTR3 के एक्सपोनेंट में हमने क्या डाल दिया, PTR1 का एक्सपोनेंट, और PTR3 के कोफिशिएंट में डाल दिया PTR1 का कोफिशिएंट. ये काम किया अगर वो बड़ा था. ठीक है, ये मोस्टली हम इसी केस में, क्योंकि हम ये सॉर्टेड ही मान के चलेंगे, तो यही एक केस होगा. ठीक है, लास्ट क्या केस हो सकता है, एल्स इक्वल नहीं है और अगर ग्रेटर नहीं है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये वाला ग्रेटर हो. ठीक है, तो उस केस में हमको क्या करना है, सेम काम करना है. पॉइंटर 3 में 3 के एक्सपोनेंट में
पॉइंटर 2 का एक्सपोनेंट डालना है और पॉइंटर 3 के कोफिशिएंट में पॉइंटर 2 का कोफिशिएंट डालना है। ठीक है, तो एल्स में लिखो एल्स इंसर्ट दी टर्म फ्रॉम सेकेंड पॉलिनोमियल, लिखो यहाँ पे एल्स insert the term from second polynomial into resultant polynomial. Okay, any doubt in here? What we are doing, we are trying to perform the addition of two numbers. If Repeat the last is else, insert the term from second polynomial into resultant polynomial. the else part, ma'am. Yes, else part is else insert the term from second polynomial, मतलब जो भी आप टर्म ले रहे हो अगर उसका कोफिशिएंट उसका एक्सपोनेंट पार्ट 1 वाली जो है, जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है, उसके एक्सपोनेंट पार्ट से अगर बड़ा है तो मुझे इसको एज इट इज़ ऐड करना है। इसको किसी से ऐड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वहाँ पे कोई पॉलिनोमियल ही नहीं है इससे रिलेटेड, तो उसको डायरेक्टली हम रिजल्टेंट पॉलिनोमियल में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ आपको। जैसे ये नोड है मेरे पास, इसके अलावा अगर यहाँ पे मेरे पास 7x5 होता, 7x5 प्लस, तो यहाँ पे 7 फर्स्ट केस जो अभी तक हम मान रहे थे दोनों इक्वल नहीं थे, सेकंड केस हमारा प्रूव हो रहा था पॉइंटर 1 का एक्सपोनेंट पॉइंटर 2 के एक्सपोनेंट से ग्रेटर है, तो उस केस में ये चलता। बट अगर मैंने ये ऐड किया है तो इसका मतलब एक नोड और है इसके आगे 7 5 और ये लिंक, तो ये फर्स्ट 2 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इस केस में देखो ये दोनों इक्वल है एक्सपोनेंट, 4 और 5 इक्वल नहीं है, 4 5 से बड़ा है वो भी केस नहीं है, तो केस क्या है, थर्ड केस है। तो उस केस में आपको ये नोड कहीं और ऐड नहीं हो सकती, तो इसको डायरेक्ट कहाँ ऐड करना है, रिजल्टेंट पॉलिनोमियल में। ठीक है, जैसे ये नोड कहीं ऐड नहीं हो सकती तो ये डायरेक्ट यहाँ लिखी जाएगी एज इट इज 7x5। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्ट मिला के क्या बनेगा, एक ऐसा लिंक लिस्ट जिसमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपका, कंबाइन हो जाएंगे ये दोनों, ये लिंक लिस्ट और ये लिंक लिस्ट ऐसी दिखेगी। ठीक है, तो उसके लिए ये एल्गोरिदम है, ये आपकी समझ ही है, ये आप डायरेक्ट खुद भी लिख सकते हो क्योंकि आपको पता है एडिशन कैसे होगी। एल्गोरिदम में कन्वर्ट करके लिख दो, ऐसे कन्वर्ट करके लिख दो, कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है पॉलिनोमियल में वो आपको करना है, दैट इज योर मल्टीप्लिकेशन। यस, एनी डाउट? मैम यस, मैम जो इक्वल वाली कंडीशन है फर्स्ट, हाँ उसमें हमें वो क्या नाम है एक्सपोनेंट नहीं वो करने के कॉपी किसी एक के नहीं, फिर सम करना है, किसी एक का कोफिशिएंट। नहीं कॉपी करना। अगर कॉफी दोनों के एक्सपोनेंट्स इक्वल हैं तो इस केस में आपको क्या करना है, एडिशन करना है कोफिशिएंट दोनों का के। हाँ, ये देखो, अगर ये दोनों एक्सपोनेंट इक्वल, का एक्सपोनेंट तो सेम ही रहेगा ना बच्चा, दो जो एक्सपोनेंट है पॉइंटर, आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट और लिख सकते हो कि हाँ हाँ पॉइंटर 3 का जो वही। एक्सपोनेंट है, पॉइंटर 3 का जो एक्सपोनेंट है, ये सारे स्टेटमेंट्स आपको जब इम्प्लीमेंट करते हो तब पॉइंटर 1 का ले लो या पॉइंटर 2 का यूज। पॉइंटर 2 का ले लो, किसी का भी ले लो। ओके मैम, थैंक यू, ये पूछ रहा था। ओके, नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमारे उसमें नहीं है, बस थोड़ा सा मैं आपको बेसिक्स समझा देती हूँ। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, कोई एक आइडिया? मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है दो पॉलिनोमियल्स का? फर्स्ट टर्म का जो दूसरे पूरी टर्म होती है उसके साथ पहले हाँ, उसके मल्टीप्लिकेशन साथ, होता है। हाँ, फिर बाद में एडिशन होता है। तो बेसिकली हमको एडिशन ही करना है रिपीटेडली। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरे डिजिट को। किसी को कोई डाउट आए तो मुझे बता देना। अब मैं ये डिजिट्स इन्हीं के नीचे लिख रही हूँ। अब क्यूब वाली कोई डिजिट नहीं है,
एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ 16x4, ठीक है। क्यूब वाली अब कौन सी डिजिट आएगी, 6x3, और ये 4 वाली कोई डिजिट नहीं है, 5 वाली आएगी 8x5, ठीक है। नेक्स्ट है 3 to 6x²। देखो ऐसे इम्प्लीमेंटेशन देखने में बहुत आसान है, मतलब अगर हम यूजिंग पेन और पेपर कर रहे हैं तो इट लुक्स वेरी इजी, क्योंकि आपको क्या करना है, बस ये चेक करना है कि ये डिजिट्स किससे क्या मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। और फिर उसके नीचे बस उसको आप एज इट इज़ लिख रहे हो और उसके बाद क्या करोगे, उसका सम करोगे, ठीक है। बट जब हम इम्प्लीमेंट करने जाएंगे इसको, तब हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ध्यान रखना पड़ेगा, कोई बता सकता है। पहली चीज़, हमको इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। अगर मेरे पास सेकेंड लिस्ट जो है वो 3 टर्म से बनी हुई है, तो मुझे 3 लिंक लिस्ट पहले बनानी होंगी। ये 3 लिंक लिस्ट बन गई, 3 लिंक लिस्ट बन गई, तो उनके बाद बस क्या करना है, इन तीनों पे एडिशन वाली एल्गोरिदम अप्लाई करनी है। कोई डाउट है इसमें? पहले मुझे क्या करना है, टेकिंग दिस इनटू कंसिडरेशन आई हैव टू क्रिएट अ लिस्ट, फिर टेकिंग दिस इनटू कंसिडरेशन आई हैव टू क्रिएट अनदर लिस्ट, फिर taking this into consideration I have to create another list, and ultimately what I have to do, I have to perform the addition of these 3 lists। addition same concept से होगी जो पहले हो रहा था, ठीक है। सिर्फ आपको जब मल्टीप्लाई करना है वो आपको कोफिशिएंट जो है वो इंक्रीज़ करना है, और जो आपकी वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ करनी है। तो कोई ईजी मेथड बता सकते हो आप मुझे इम्प्लीमेंट करने का मल्टीप्लिकेशन को, बताओ कोई इजी मेथड जो आप मान सकते हो कि इससे इम्प्लीमेंट हो सकता है। यस एनीवन, बताओ। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम स्कैन कर रहे हैं सेकंड पॉलिनोमियल फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट। लास्ट टू फर्स्ट का क्या मतलब है, सेकंड पॉलिनोमियल का एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं, 3 2 1 1 2 0, ठीक है। अब स्टार्ट करो 2 से, फर्स्ट से लेके सेकंड नोड पे जाके थर्ड पे आपको ट्रैवर्स करना है। स्टार्ट करो 2 से। सेकंड जो भी आपकी लिस्ट है जो कि है 8 4 6 2 5 1 2 0 none। So you have to multiply this and this. How you will multiply? You will multiply coefficient with coefficient, and you will multiply you will add exponent with exponent. Okay, so what you have to do, multiply coefficient, add exponents। ऐसे ही करते हो जैसे मैंने यहाँ पे किया, मुझे है ना, जैसे मुझे 5 इंटू 2 किया तो ये 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई हुआ, और अगर x यहाँ पे है, जैसे ये वाली टर्म्स अगर लेते हैं, x यहाँ पे है तो x की इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, और रिजल्ट में क्या आएगा, x²। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने पीछे से स्टार्ट किया, मल्टीप्लाई करते जाओ, एक सेकेंड, मल्टीप्लाई करते जाओ कोफिशिएंट्स को और ऐड करते जाओ एक्सपोनेंट्स को। तो हम लिख लेते हैं ये टर्म। अभी मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इससे। तो मल्टीप्लाई करो कोफिशिएंट्स को, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो गए, 16 आया, एक्सपोनेंट्स ऐड हो गए, 4 आया, फिर एक्सपोनेंट आपके कोफिशिएंट्स क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, 12 आया, exponents add हुए, 2 + 0 2, then multiply the coefficients, 5 into 2, add the exponents, 1 + 0 1,
and next is 2 is this, 4, 0 plus 0 0, and this is your first लिंक लिस्ट मतलब फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक लिंक लिस्ट बन गई। सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको सेम इस वाली लिंक लिस्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस वाली नोड से। मतलब आप सेकेंड लास्ट से आप किस पे आ गए हो, सेकेंड लास्ट पे। 8 इंटू 1 8, 4 प्लस 1 5। नेक्स्ट नोड 6 इंटू 2 12, 2 प्लस 1 सॉरी 6 इंटू 1 6, 2 plus 1 3, 5 into 1 5, 1 plus 1 2, last is 2 into 1 1, 1 plus 0 1। तो ये हो गई सेकेंड लिंक लिस्ट। एंड सिमिलरली आपके पास क्या आ जाएगी, थर्ड लिंक लिस्ट। फिर आपको लास्ट में क्या करना है, इन तीनों का सिंपल एडिशन करना है। पहले दो लिंक लिस्ट का एडिशन कर लो, फिर उनका जो भी सम होगा उसका थर्ड लिंक लिस्ट के साथ एडिशन कर लोगे। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? बताओ कौन पूछ रहा था, कोई डाउट है ना किसी को? मैम ये सेमेस्टर में आएगा मतलब एग्जाम में? हाँ, ये मतलब थ्योरेटिकली तो आएगा, क्वेश्चन भी आ सकता है, बट इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है। पर मल्टी एडिशन है, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये तो बल्कि इजी है ना, एडिशन से ज़्यादा इजी है। आपको मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं करना, 1 बाय 1 रिट्रीव करते जाना है, एक ये ब्लॉक ले लेना है और 1 बाय 1 रिट्रीव करते जाना है और उसको मल्टीप्लाई और ऐड करते जाना है, लूप लगाना है एक सीधा सा। मैम हाँ मैम बोलो। आपने अभी स्टार्टिंग में कहा था कि मल्टीप्लिकेशन का कोई और इम्प्लीमेंटेशन का फॉर्मेट भी होता है, सो मैम इसके अलावा भी कोई और तरीका है इसको हाँ इम्प्लीमेंट हाँ करने का? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। कौन सा फॉर्मेट? जो भी पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन जो भी होगी उसका बेसिक कंसेप्ट तो यही रहेगा। क्योंकि आप अगर पॉलिनोमियल को, एक पॉलिनोमियल टर्म को दूसरी पॉलिनोमियल टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो टेक्निक यही रहेगी, यही रहेगी ना। हाँ, तो इसको इम्प्लीमेंट आप कैसे भी कर सकते हो, लिंक लिस्ट से भी कर सकते हो, बल्कि आप एरे से भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। बट एरे से इम्प्लीमेंटेशन बहुत बहुत मुश्किल, बहुत कुछ आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये लिंक लिस्ट का हम एडवांटेज भी बता रहे हैं एक तरीके से, कि लिंक लिस्ट में आप ये चीज़ बहुत आसानी से कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पास हर चीज़ को मेंटेन करने का, उसका कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट अलग से मेंटेन कर पा रहे हो, इसलिए बहुत ईजी हो रहा है इम्प्लीमेंट करना। ये एक तरीके से इसकी प्रॉपर्टी है लिंक लिस्ट की। ओके मैम। हाँ, तो आप बताओ, आप कौन सा तरीका बता रहे हो इम्प्लीमेंट करने का? मैम वही मैं तरीका आपसे पूछ रहा था कि कोई और दूसरा है तो। देखो, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको इम्प्लीमेंट करने का तो यही तरीका है। मल्टीप्लिकेशन अगर पॉलिनोमियल के बीच में हो रही है तो ऐसे ही होगी, और कोई तरीका नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन आप अलग तरीके से कर सकते हो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप यही कंसेप्ट लगाओ। आपको अगर लगता है कि मैं ऐसे करके ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, कर सकते हो। कॉम्प्लेक्सिटी कम होनी चाहिए। हमारे पास मेन मोटिव क्या रहता है कोई भी चीज़ करने का, कि कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़ाए बस, वो किसी चीज़ की, ना स्पेस की ना टाइम की। You can do it by any way. I have no problem at all. Anyone is waiting in the lobby? Yes, 1 minute. Okay. Class representatives of CS and CIT, you both are requested to monitor कौन से students ऐसे हैं जो भी class में नहीं है, let me know. Okay? मैम Yeah, 1 minute. Yes, tell. मैं भी बुरा बोल रहा हूँ Yes. मैम, मेरा कनेक्शन वीक हो गया था मैम ज़्यादा ही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. So I have downloaded the attendance list. You can share with me who were absent. I'll just cross check it and then I'll mark the attendance. Okay? मीनाक्षी मिश्रा डाउनलोड लिस्ट में नहीं आता है मैम मेरा। कोई बात नहीं, आपका कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगा। उसका आप जिस भी उससे लॉग इन होते हो, आपका शायद कुछ फ़ोन नंबर जैसा कुछ आता है, तो आई नो दैट इट इज़ यू। एक्सक्यूज मी मैम, यस।
मैम आपको कोई आइडिया है कि पेपर्स कब तक मिलेंगे? कौन से पेपर्स? मैम एसटी के पेपर कब तक मिलेंगे मैम? वो चेक। आपने जहाँ सबमिट किए हैं ना वहाँ पे रिटर्न हो गए होंगे, आप वहीं पे जाके चेक करो। मैम अभी तक तो आई गेस नहीं हुए। मैम डीएस का नहीं हुआ। मैम डीएस का मैम नहीं हुआ है मैम, बाकी फोर डीएस का सब्जेक्ट्स के हो गए हैं। आपने डीएस का आपने मेरे उस पे किया था क्या? टीम पे किया था या मैम को किया था? मैम मैम टीम टीम पे। मैम ओके टीम। ओके ओके ओके, आई विल आस्क, क्योंकि मैंने पेपर्स चेक नहीं किए थे, सुरभि मैम ने किए थे, तो आई विल आस्क हर उन्होंने सबमिट किया है या रिप्लाई बैक किया है या नहीं। ओके ओके मैम। ओके। Yes. तो एनी प्रॉब्लम इन हेयर? I hope so. There would be no problem. So, what we can do, we can move to the next topic, that is the applications of stack. Note down the heading. Applications of stack. I have told you one application that day. Can anyone tell me? Can anyone tell me the application of stack? Yes? No one? I told you the application of stack that day. For what purpose do we use a stack? मैम रिकर्जन में जब रिकर्जन करता रहता है प्रोग्राम। रिकर्जन करता है या मेन प्रोग्राम से सब प्रोग्राम पे जाता है, तो उस टाइम पे हाँ, हम जो स्टैक की एप्लीकेबिलिटी सबसे ज़्यादा वहीं पे है। सेकंड जो हम एप्लीकेबिलिटी देखते हैं वो है उसकी चेकिंग दी वैलिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन। चेकिंग दी, लिख लो, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चेकिंग दी वैलिडिटी ऑफ एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। What is the meaning of this term? For example, let me have an expression something like this: a plus b and c plus d minus f plus g. Let's say this. Okay, so how do you identify or validate that this is an arithmetic expression? First and foremost, we know that there should be operator between two different, if it is an unary operator, then it can have one single variable. But if there is a binary operator like plus, minus, then it should be surrounded by two different what you say variables. Okay, other than that, the validity of an arithmetic expression is decided if all the opening brackets have their relevant, their respective closing brackets. ठीक है, क्या मतलब है इस टर्म का कि अगर आपकी एक्सप्रेशन में जितने भी ओपनिंग ब्रैकेट्स आप लगा रहे हो उनके कंसेक्यूटिव जो भी क्लोजिंग ब्रैकेट हैं वो आपके एक्सप्रेशन के अंदर होने चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर देखना स्टार्ट करती हूँ और ये अगर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन एक एरे में डाली है, एरे मतलब समथिंग कुछ ऐसा मैंने अगर डाला है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जैसे मैंने ये वाला क्लोजिंग ब्रैकेट डाला, ओपनिंग ब्रैकेट डाला, फिर ये डाला, फिर ए, फिर प्लस, फिर बी, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट, फिर माइनस का साइन, फिर ये ओपनिंग ब्रैकेट, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये जो ओपनिंग ब्रैकेट है इसका ये क्लोजिंग ब्रैकेट है कहीं? अभी हम देख के तो बता सकते हैं कि ये जो ओपन हुआ है ये यहाँ क्लोज हुआ है, ठीक है, बट जैसे हम कई बार कोड भी लिखते हैं, प्रोग्राम भी लिखते हैं, सी प्रोग्राम, तो क्या होता है ओपनिंग ब्रैकेट होता है बट क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं होता है, कई बार मिस हो जाता है हमसे। तो जो एक स्टैक है वो हमें इसका बहुत अच्छा तरीका देती है। स्टैक क्या बोलती है कि स्कैन करो लेफ्ट टू राइट, मतलब पूरी जो आपकी जो भी एक्सप्रेशन है उसको स्कैन करो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
as you are approaching any opening bracket, push it into the stack. ठीक है, जैसे ही आपको कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट मिलता है आप इसको स्टैक में पुश करो. मुझे एक मिल गया ओपनिंग ब्रैकेट, एक और ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया, मैंने उसको स्टैक में पुश कर दिया. ठीक है, अब उसके बाद ए है, ये कोई ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, प्लस है, ये कोई ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, बी है, ये भी कोई ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, और ये आ गया क्लोजिंग ब्रैकेट. क्लोजिंग ब्रैकेट का क्या मतलब हो गया कि ये जो ओपनिंग थी इसकी क्लोजिंग हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, पॉप कर लेंगे. ठीक है, जब भी एक क्लोजिंग ब्रैकेट आपको मिल रहा है आप पॉप कर लो, तो उससे क्या हो रहा है, ये वैलिडेट हो गया कि इस ओपनिंग का ये क्लोजिंग था, तो ये तो एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है. आगे चलेंगे, मिल गया नेगेटिव, कोई बात नहीं, फिर एक और ओपनिंग ब्रैकेट मिला, तो अब इसकी जगह क्या आ गया, ये ओपनिंग ब्रैकेट आ गया. ठीक है, फिर हमने सी पढ़ा, प्लस पढ़ा, डी पढ़ा, फिर जैसे ही हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिला हम फिर से क्या कर लेंगे, पॉप. एक और पॉप हो गया. फिर हमें क्या मिला, क्लोजिंग ब्रैकेट. जैसे ही हमें ये क्लोजिंग ब्रैकेट मिला हम क्या कर लेंगे, एक और पॉप. तो एक और पॉप करने का मतलब ये भी हमारा वैलिडेट हो चुका है, ये इसकी ओपनिंग थी, इसकी क्लोजिंग भी है, तो ये हमारा वैलिडेट हो गया. उसके बाद माइनस, अब हमारे पास एक और ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है, तो ये ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ पे आ गया. एफ पढ़ा, प्लस पढ़ा, जी पढ़ा, फिर जैसे ही आपका क्लोजिंग ब्रैकेट आया आपने फिर से क्या किया, पॉप. अगर पूरे एक्सप्रेशन खत्म होने के बाद आपका स्टैक जो है वो एम्प्टी है, तो हम बोलेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है वो वैलिड है. अगर पूरा एक्सप्रेशन खत्म होने के बाद स्टैक में कोई ना कोई ओपनिंग या कोई ना कोई क्लोजिंग ब्रैकेट अगर बचा हुआ है, तो ये आपका जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड. ठीक है, तो वैलिड कब होगा, जब आपका स्टैक क्या होगा, एम्प्टी, और अगर स्टैक एम्प्टी नहीं होगा तो क्या होगा, इनवैलिड. कोई डाउट है इसमें किसी को? क्या किया हमने, वन बाय वन सारे ओपनिंग ब्रैकेट्स हम स्टैक पे पुश करते रहे, और जैसे ही हमें कोई क्लोजिंग ब्रैकेट मिला हमने पॉप कर दिया. ठीक है, कोई भी क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो हमने उसको पॉप कर दिया. ठीक है, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, और ऐसा नहीं हो कि आपने यहाँ पे लगाया है लेट्स से ये वाला ब्रैकेट, तो ये जैसी क्लोजिंग आया आपको पहले मैच करना पड़ेगा कि इससे रेलेवेंट ओपनिंग ब्रैकेट जो है वो टॉप ऑफ स्टैक में है. अगर उससे रेलेवेंट टॉप ऑफ स्टैक में नहीं है तो भी आपका क्या होगा, ये जो आपका स्टैक है वो क्या हो जाएगा, तभी के तभी क्या हो जाएगा, इनवैलिड. क्योंकि अगर आपने ओपन किया था सिंपल राउंड ब्रैकेट और आप क्लोज कर रहे हो करली ब्रैकेट, तो वो वहीं के वहीं इनवैलिड हो गया. तो यू हैव टू पॉप एंड मैच, कि जो आपका क्लोजिंग ब्रैकेट था और जो आपका पॉप होके वैल्यू आई है, दोनों मैच हो रही हैं या नहीं. अगर वो दोनों मैच नहीं होती हैं तभी के तभी आप बोल सकते हो इनवैलिड. तो किस किस केस में इनवैलिड होगा, व्हेन स्टैक इज नॉट एम्प्टी, व्हेन स्टैक हैज सम आइटम, हैज सम वैल्यू, और पॉप्ड वैल्यू, पॉप्ड क्या होगा, ओपनिंग doesn't match with closing parenthesis. इन दोनों केसेस में आपका जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड. एनी डाउट? नो मैम. Okay, good. 1 minute. Okay, so next, the most important application which we use in trees and graph as well is the Polish notation. You can make it as the most important one. गेट में भी इनके क्वेश्चंस आते हैं और बहुत जगह रेंडमली आस्क भी किए जा सकते हैं आपसे. तो पॉलिश नोटेशन क्या होता है, हमारा जो भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होता है, जैसे हम जो भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं उसको हम 3 तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक पॉलिश नोटेशन के अंदर, प्रीफिक्स, इनफिक्स, पोस्टफिक्स. प्रीफिक्स का क्या मतलब है, जो भी आपका ऑपरेटर है
जैसे मैंने ये a प्लस बी की टर्म लूँ मैं, अगर जैसे मेरे पास ये a प्लस बी है, तो प्रीफिक्स में क्या रहेगा, जो आपका ऑपरेटर है वो पहले आएगा। इनफिक्स में ऑपरेटर दो वैल्यूज़ के ऑपरेंड्स के बीच में। पोस्ट फिक्स में आपका ऑपरेटर कहाँ आएगा, पीछे। ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई भी एक टर्म है, अगर मैं यही टर्म की बात करूं, इतनी बड़ी टर्म अभी हम एग्जांपल में नहीं लेते, सिंपल टर्म की ही बात करूं कि मेरे पास अगर टर्म है a प्लस बी इंटू सी, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू सी का क्या मतलब है, ये दोनों पे पहले अप्लाई होगा। किस पे पहले अप्लाई होगा, बॉड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होगी, तो इन दोनों पे पहली अप्लाई होगी, फिर इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको a के साथ ऐड करना होगा। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, b और c पे पहले क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। फिर ये अगर टर्म आएगी, इन दोनों का रिजल्ट आएगा, तो वो किससे ऐड होगा, a से। अब आप बोलोगे कि ये कहाँ से आया, ये ऐसे आपको इतना गोल गोल घूम के ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। इजी तरीका क्या है, जैसे मेरे पास है a प्लस बी इंटू सी, ठीक है। तो एज्यूम कर लो सबसे पहले कि जो भी ऑपरेशन मुझे सबसे पहले करना है, जैसे कि मेरे पास ये एक ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में से पहले करना है, तो ये एज्यूम कर लेंगे हम कि ये ब्रैकेट के अंदर है, और पहले इनको कन्वर्ट कर लेंगे। a प्लस इनको प्रीफिक्स में कन्वर्ट किया तो क्या आएगा, bc। ठीक है। अब इसको एक टर्म मान लो, लेट मैंने बोल दिया ये एक टर्म है d, तो अब मेरे पास आ गया a प्लस डी। ए प्लस डी का क्या मतलब है, अब ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा प्लस ए डी। अब बस आपको क्या करना है, डी की जगह सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये प्लस ए स्टार बी सी, ये आपका क्या हो गया, प्रीफिक्स नोटेशन ऑफ दिस टर्म। ये जो टर्म थी इसका प्रीफिक्स क्या हो गया, ये। और इनफिक्स तो सेम एज इट इज रहेगा, ए प्लस बी इंटू सी। पोस्ट करने में कैसे रहेगा, सेम यही एक्सप्रेशन अगर हम लेते हैं पोस्ट के लिए, तो क्या रहेगा, a प्लस बी इंटू सी, इनको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, a प्लस, इन पे ऑपरेशन लगाएंगे तो ऑपरेटर कहाँ चला जाएगा, बाद में। फिर इसको आप d मान लो, तो ये हो गया a प्लस डी, इन दोनों पे ऑपरेटर लगाएंगे, ऑपरेटर पीछे लगाएंगे तो ए डी प्लस हो गया। फिर अब बस आपको सब्स्टिट्यूट करनी है d की वैल्यू, और ये आपका क्या आ गया, पोस्ट फिक्स की नोटेशन। समझ आया आपको, ये कंसेप्ट समझ आया कि हम क्या कर रहे हैं, यस, एनीवन, एनी डाउट इन दिस। इनफिक्स तो मोस्टली हम हर जगह इनफिक्स ही यूज करते हैं। प्रीफिक्स में, एक मिनट, प्रीफिक्स में हम ऑपरेटर्स जो है ऑपरेंड से आगे लगा देते हैं, और पोस्टफिक्स में हम ऑपरेटर्स जो ऑपरेंड्स हैं उनके बाद लगा देते हैं। ठीक है। सबसे आसान तरीका करने का क्या है, बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग जो भी ऑपरेशन पहले परफॉर्म होता है, पहले उसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करो या प्रीफिक्स में कन्वर्ट करो। फिर उन दोनों जो भी टर्म आपके पास आई, कंफ्यूज ना हो इसके लिए उसको क्या करो, एक नया नाम दे दो, जैसे मैंने नाम दिया डी। फिर रिमेनिंग जो नोड्स हैं उन पे सेम ऑपरेशन दोबारा अप्लाई करो, फिर उसका रिजल्ट आ गया ये, तब फिर आप सब्स्टिट्यूट करो डी को, जो भी आपकी डी की वैल्यू थी उसको सब्स्टिट्यूट करो, तो ये मैंने डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ऐसे जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो बिल्कुल करेक्ट मिलेगा। बताओ, अब बताओ, कोई डाउट? ओके मैम। कोई डाउट नहीं है? कोई वो नहीं है, पक्का? ठीक है। तो हम जो हमारी टर्म्स हैं, पॉलिश नोटेशन और रिवर्स पॉलिश नोटेशन, तो उसको ये पॉलिश, आपकी प्रीफिक्स को आप बोलते हो पॉलिश नोटेशन, और पोस्टफिक्स को बोलते हो रिवर्स पॉलिश। ठीक है। मतलब पॉलिश नोटेशन, इनफिक्स तो ऑलरेडी यूज़ करते ही हो, हर जो भी टर्म्स हैं वो इनफिक्स ही हैं। पॉलिश नोटेशन का मतलब है प्रीफिक्स, और रिवर्स पॉलिश का मतलब है पोस्टफिक्स। ठीक है। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि बॉडमास का रूल कैसे अप्लाई होता है। बॉडमास, वी नो हाउ थिंग्स हैपन। फर्स्ट आई विल गो फॉर ब्रैकेट्स। अगर मेरे पास कोई ब्रैकेट होंगे तो ब्रैकेट के अंदर चाहे एडिशन हो रही है, चाहे सब्ट्रैक्शन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, सो फर्स्ट आई हैव टू गो फॉर
दैट। ठीक है, उसके अलावा अगर मानो किसी टर्म में एक्सपोनेंशियल भी आ रहा है, जैसे फर्स्ट आप ले लो ब्रैकेट्स, सेकेंड आप ले लो एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंट्स कब आते हैं एक्सपोनेंशियल? अगर कहीं हमने x की पावर 4 लिखा है या कुछ ऐसा है तो उस केस में वो पहले सॉल्व होगा। थर्ड आप ले लो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। बट जब हम बात करते हैं पॉलिश नोटेशन और रिवर्स पॉलिश की, तो मोस्टली हम मल्टीप्लिकेशन को वो देते हैं, मतलब अगर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हमको दिखती है तब हम क्या करते हैं, या तो मल्टीप्लिकेशन को देते हैं या मोस्टली हम लेफ्ट टू राइट भी फॉलो करते हैं, है ना। अगर मुझे दोनों सेम मिल जाते हैं तो जो पहले लेफ्ट में होता है वो फॉलो करते हैं, या फिर डायरेक्ट आप ये भी एज्यूम कर लो कि मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप उस टाइम आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप दोनों में से कुछ भी फॉलो कर सकते हो। और फिर लास्ट में क्या होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मोस्टली हम लेफ्ट टू राइट ही फॉलो करते हैं कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है और दोनों एक ही लेवल में है तो पहले हम लेफ्ट वाला परफॉर्म करते हैं फिर राइट वाला। ठीक है, सो एक एग्जाम्पल लो और उसको सॉल्व करो और मुझे बताओ, आंसर बताना। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, कन्वर्ट द एक्सप्रेशन इनटू रिवर्स पॉलिश नोटेशन या कन्वर्ट इट इनटू पोस्टफिक्स a plus b डिवाइड बाय c माइनस d। कन्वर्ट इनटू पोस्टफिक्स, कन्वर्ट करो इसको पोस्टफिक्स में। एक और है a इंटू बी प्लस c इंटू डी, इसको भी करो पोस्टफिक्स में। फिर उसके बाद है एक a प्लस बी इंटू सी माइनस डी एक्सपोनेंट f इंटू एक्सपोनेंट f इंटू g इंटू h। ये दोनों आप करो, ये वाला मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अब मुझे बताओ एज पर द बॉडमास रूल क्या होगा। एज पर द बॉडमास रूल फर्स्ट आई हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट पहले है बट उसके अलावा भी एक और ब्रैकेट है, तो सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट सॉल्व होगा। ठीक है, इनर मोस्ट ब्रैकेट का मतलब a प्लस बी इंटू सी माइनस, अब ये वाला ब्रैकेट मुझे सबसे पहले सॉल्व करना है। इस वाले ब्रैकेट में मेरे पास दो टर्म्स हैं, एक है डिवीजन एक है एक्सपोनेंशियल। जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि एक्सपोनेंशियल की प्रायोरिटी ज़्यादा रहती है। दैट मीन्स फर्स्ट आई हैव टू सॉल्व द एक्सपोनेंशियल। डी डिवाइड एज इट इज ई एफ एक्सपोनेंशियल, ये मेरे पास क्या बन गया, पोस्टफिक्स की टर्म बन गई ई एक्सपोनेंशियल एफ की। ठीक है, आप इसको एक नाम दे दो, लेट्स से, क्योंकि हमने ए बी सी डी यूज़ किया है तो हम लास्ट से यूज़ करते हैं, जेड से लेते हैं। इसको एक टर्म दे दिया, बाकी सारी एक्सप्रेशन एज इट इज़। ठीक है, नेक्स्ट ए प्लस बाकी सब कुछ एज इट इज़। अभी हम डायरेक्ट पहले कहाँ से सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब डी डिवाइड बाय जेड हो गया तो क्या आ जाएगा, डी जेड डिवाइड। ठीक है, डी जेड डिवाइड हो गया, डी जेड डिवाइड, ये पोस्टफिक्स नोटेशन हो गया इस ब्रैकेट का। अब आप इस पूरी टर्म को एक और नाम दे दो, मैंने नाम दे दिया y। पीछे से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ये अल्फ़ाबेट्स आगे से स्टार्ट हुए थे इसलिए मैंने पीछे से स्टार्ट किया। a प्लस डी इंटू सी माइनस वाई, यहाँ पे दो ब्रैकेट्स थे ना, नहीं एक ही है, y इंटू जी इंटू एच। अब आपके पास दूसरा ब्रैकेट कौन सा बचा है, ये वाला। अब इस वाले ब्रैकेट्स में आपके पास क्या है, दो वैल्यूज हैं, b इंटू सी, b इंटू सी, y इंटू जी।
मैं इनको दोनों को सेम टाइम पे सॉल्व कर लेती हूँ। BC स्टार माइनस YG स्टार, यस कर सकते हैं, एक टाइम पे कर लिया दोनों को सॉल्व। ओके, अब इसको नाम दे दो, मैंने इसको नाम दे दिया U, इसको नाम दे दिया V। तो मेरे पास आ गया A प्लस U माइनस V इंटू H। ओके, अब A प्लस, अब फिर से ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट सॉल्व करने में क्या आ गया, UV माइनस इंटू H। UV माइनस का क्या मतलब है, इसको भी एक नाम दे दो, मैंने लेट से नाम दे दिया X, तो ये हो गया X इंटू H। अब एक आपके पास ऑपरेटर बचा प्लस, एक ऑपरेटर बचा मल्टीप्लिकेशन का, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को एक टर्म ले लो, इन दोनों को एक टर्म ले लो, XH इंटू, और इस XH इंटू को एक नाम दे दो, कौन सा नाम बचा है, W बचा है, तो ये आ गया A प्लस W। तो A प्लस W का मतलब ये हो गया AW प्लस। अब आपको क्या करना है, बस सब्स्टिट्यूट करना है, ये रिजल्ट आ गया AW प्लस AXH स्टार प्लस, ये मैंने किसको सब्स्टिट्यूट किया, W को, W की वैल्यू क्या थी, XH स्टार। ओके, नेक्स्ट किसको सब्स्टिट्यूट करो, X को सब्स्टिट्यूट करो, X की वैल्यू क्या थी, UV माइनस H मल्टीप्लाई प्लस। अब मैंने ये X की जगह क्या रखा है, UV माइनस। अब U की जगह क्या आएगा, BC स्टार, V की जगह क्या आएगा, YG स्टार माइनस H स्टार प्लस। ओके, अब कौन से सब्स्टिट्यूट बच गया, Y बच गया। Y की वैल्यू क्या है, DZ डिवाइड G स्टार माइनस H स्टार प्लस। नेक्स्ट क्या है, ABC स्टार D, Z की वैल्यू क्या है, EF एक्सपोनेंट डिवाइड G स्टार माइनस H स्टार प्लस। तो ये जो हमें टर्म दी गई थी इनफिक्स में, उसका रिवर्स पॉलिश या पोस्ट फिक्स नोटेशन है ये, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसमें स्टैक का क्या रोल है, ये तो हमें कुछ भी इसमें स्टैक का कोई वो नहीं है, बट हम ये जो कन्वर्जन है फ्रॉम इनफिक्स टू प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स, ये बहुत इजीली कर सकते हैं यूजिंग स्टैक। हमें सिर्फ रूल स्पेसिफाई करना होगा कि कब आपको पैरेंथेसिस जो है या कब आपको ऑपरेटर जो है कहाँ प्लेस करना है, वो आपको स्टैक के ऑपरेशंस में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो वो हम करेंगे अभी। उससे पहले आप मुझे बताओ कि ये आपको टर्म समझ आ गई, ये एक्सप्रेशन समझ आ गया, हाउ आई हैव कन्वर्टेड फ्रॉम दिस Yes, ma'am. to this. Okay, so try to solve these two first and then give me the prefix expression of this prefix. Same प्रॉब्लम मैंने पोस्ट किया है, आपको प्रीफिक्स करना है, ठीक है। पहले ये दोनों हाँ फर्स्ट वाला कर लेते हैं ना फिर। हाँ, पहले ये दोनों करो, अगर इन दोनों में कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछो, और उसके बाद प्रीफिक्स करेंगे, ठीक है। पोस्ट फिक्स का अभी प्रीफिक्स नहीं भी किया तो चलेगा, पोस्ट फिक्स का मैं आपको एल्गोरिथम लिखा दूँ, उसके बाद भी कर सकते हो, बट आपको समझ आना चाहिए। एंड आई एम रिपीटिंग वन थिंग, CS और CIT आपकी इस वीक की जो भी लैब है उसमें आपको लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंट करना है ऑन सिट्रिक्स, ठीक है। मैं एक असाइनमेंट बना दूंगी आपके टीम पे, और आपको वहाँ पे उस असाइनमेंट में आपके जो स्क्रीनशॉट्स हैं, जो आप इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, जो भी आउटपुट हुआ आया है आपका, वो आपको वहाँ पे अपलोड करना है। जो अपलोड करेंगे उनको ही उस लैब की अटेंडेंस मिलेगी। असाइनमेंट की डेडलाइन रहेगी
बाय द नेक्स्ट वीक ऑफ योर लैब। मतलब अगर आज जिनकी आज लैब है उनका नेक्स्ट संडे तक रहेगी असाइनमेंट की डेडलाइन, और जिनका थर्सडे को लैब है या ट्यूसडे को लैब है उनका उससे पहले मंडे तक। मतलब आपको एक वीक मिलेगा पूरा, वो पूरा प्रोग्राम जो है कंप्लीट करके अपलोड करने में। ठीक है, तो आज जिनकी लैब है और जो आगे भी CIT की लैब है उन लोगों को लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च हमने क्लास में डिस्कस किया था, सूडो कोड भी लिखा था उसका, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है ऑन द सिट्रिक्स। ओके, और जिनके सिट्रिक्स की IDs या पासवर्ड्स नहीं चल रहे हैं, जिनको कोई भी दिक्कत आ रही है, वो लोग कोड ब्लॉक्स पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोडिंग सेम नहीं होनी चाहिए आपकी, आपके आउटपुट्स डिफर करने चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आपका जो कोडिंग का जो भी पार्ट है, एक कुछ पार्ट तो भी अलग रहता ही है और उसके अलावा आउटपुट भी अलग रहता है। तो जिनके अगर कुछ कोड्स मुझे ऐसे लगेंगे कि सेम है, रिपीटेड है, कॉपी पेस्टेड है, तो आई विल नॉट कंसिडर देयर सबमिशन। यू हैव टू गिव यूनिक सबमिशंस। तो कुछ नहीं करना, लीनियर सर्च में तो करना ही कुछ नहीं, सिर्फ एक लूप लगाना है। बाइनरी सर्च में भी आपको इफ एल्स के साथ लूप लगाना है, तो वो बहुत इजी इम्प्लीमेंटेशन है दोनों की ही। आपको आज ही कंप्लीट हो जाए तो आज ही सबमिट कर देना। ठीक है, तो अभी हो गया, ये पोस्ट फिक्स में कन्वर्जन हो गया। मैम एक क्या मिनट कर रहे हैं। अच्छा, और जो नहीं कर रहे उनको, उनका क्या, सभी कर रहे हैं? क्या रिजल्ट आ रहा है, किसी का हुआ है अभी कंप्लीट? Yes, मैम everyone. AB प्लस डिवाइड CD माइनस AB plus पोस्ट डिवाइड फिक्स, CD माइनस। दोबारा करो। मैम AB प्लस CD माइनस डिवाइड। यस मैम, ये आ रहा है। हाँ, क्योंकि ये जो ऑपरेटर है ये भी आपका इन दोनों ब्लॉक्स के पीछे जाएगा। ओके मैम। और इसका ये भी इजी है, देख के बता सकते हो। AB स्टार मैम AB स्टार CD CD डिवाइड प्लस। डिवाइडेड प्लस। हाँ, अगर ये दोनों ब्लॉक्स एक साथ ले, ये दोनों ब्लॉक्स एक साथ ले, तो AB के पीछे स्टार चला जाएगा, CD के पीछे, और इन दोनों के बीच का जो था वो लास्ट में। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नो मैम। ओके, अब ये वाला कन्वर्जन करो प्रीफिक्स में। नेक्स्ट टाइम हम डायरेक्ट, मैं आपको स्टैक से इम्प्लीमेंटेशन दोनों का बता दूंगी, इनफिक्स से पोस्टफिक्स में, इनफिक्स से प्रीफिक्स में। इनफिक्स के और क्वेश्चंस? म्यूट योर माइक। So these two questions are there. Okay, I'll show you how to solve the first one. For the first one we have this. Okay, so who is having the highest priority? This one. So convert this into prefix. Prefix का मतलब आपका जो ऑपरेटर है वो कहाँ आएगा, आगे।
ठीक है, तो ये ऑपरेटर आगे आ गया, इसको वैल्यू दे दी x। अब हुआ a डिवाइड बाय x माइनस डी। अब किस ऑपरेटर की ज़्यादा प्रायोरिटी है? डिवीजन की। डिवीजन वाला ऑपरेटर आगे आ गया। अब इसको भी आप चाहो एक नाम दे दो y। ठीक है, तो y माइनस डी हो गया, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस वाई डी। ठीक है, अब y को सब्सटीट्यूट करो। सब y की वैल्यू क्या है? माइनस ए एक्स डी। अब x की क्या वैल्यू है? माइनस डिवाइड ए बी सी डी। ठीक है, एनी डाउट इन हेयर? जैसे हमने ये परफॉर्म किया था ऐसे ही ये परफॉर्म करना है। तो ये दो क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करो, ये सेकंड वन और ये वाला। और यूजिंग स्टैक हम कैसे कन्वर्जन करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स CS में कौन कौन एब्सेंट है बता दो मुझे। क्वेश्चंस नोट कर लिया आपने? मैं ये एग्जिट कर रही हूँ यहाँ से। CS के क्लास रिप्रेजेंटेटिव कौन है? मैम बताओ कौन एब्सेंट है? मैम आदित्य प्रताप, ओके, आदित्य प्रताप, अबूजर, अबूजर, संचिका, संचिका। ओके, Hello, रोहित excuse शर्मा, me, ma'am. Sanchika is present. हाँ संचिका प्रेजेंट है। मैं ठीक है, स्टार्टिंग में तब दिया था। Thank you, ma'am. हाँ कोई बात नहीं। आदित्य प्रताप, अबूजर, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। Ma'am, Samiksha is present. हाँ नेक्स्ट, CIT, मैम आर्यन खंडारी, आर्यन, खंडारी, मैम प्रेजेंट। भाई स्टार्ट तो भाई क्या बात है। आर्यन कंडारी है। ओके, नेक्स्ट। बस मैम। एक ही ऑप्शन था CIT में? मैम CS का था मैम, CS ये CS का है। CIT में मैम एक बार ही लैब वाली बात रिपीट कर दो मैम, कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। अच्छा, पहले CIT की अटेंडेंस ले लेते हैं फिर रिपीट करती हूँ। CIT में CIT का कोई क्लास रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? आशुतोष, आशुतोष यस झा, मैम। आप बता सकते हो कौन एब्सेंट है एक बार देख के? मैम आई डाउट सो, मैम ट्राई करता हूँ। हाँ तुम एक बार नोट करो, फिर मैं तब तक लैब की बात रिपीट कर देती हूँ एक बार दोबारा। लैब के लिए ऐसा है कि अगर आपको लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट करना है एक तो आज की लैब में, अगर आपका सिट्रिक्स पे लॉगिन नहीं हो पा रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो आप कोड ब्लॉक्स पे इम्प्लीमेंटेशन करो और स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करना। असाइनमेंट मैं टीम पे अपलोड करूँगी, मतलब मैं डायरेक्ट ब्लैंक असाइनमेंट अपलोड करूँगी, प्रैक्टिकल नंबर 2, और आपको वहाँ पे अपलोड करने हो गए आपका जो भी कोड आपने लिखा है उसका स्क्रीनशॉट, जो भी आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट सबका अलग होना चाहिए। ठीक है, और चाहे आप कोड ब्लॉक्स में कर रहे हो चाहे सिट्रिक्स में कर रहे हो, आप सभी को असाइनमेंट वहाँ पे अपलोड करनी है। लास्ट डेट असाइनमेंट की आपकी नेक्स्ट लैब से एक दिन पहले तक की रहेगी। उस लैब से पहले तक अगर आप मुझे सबमिशन कर दोगे तो आई विल मार्क योर अटेंडेंस। ठीक है, यस मैम। मैम वो लीनियर और बाइनरी सर्च मैम एरे पे करना है कि लिंक लिस्ट पे? दोनों पे। लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन कर ली आपने ना लास्ट फर्स्ट लैब में? यस मैम, बस सर्चिंग करना था तो दोनों में से कोई एक कर ली।
हाँ, तो जो भी आपने लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट किया है, आप बाइनरी सर्च को मतलब दोनों से इम्प्लीमेंट करो, या फिर एक काम करो, एक को एरे से करो तो दूसरे को लिंक लिस्ट से करो। आपकी इम्प्लीमेंटेशन आपको समझ आनी चाहिए दोनों भी तरीकों से, एरे से भी और लिंक लिस्ट से भी। यस आशुतोष, पता चला कौन एब्सेंट है? अदरवाइज आई हैव टू कॉल वन वन। प्रेजेंट है आज। हाँ मैम मेरे सब प्रेजेंट है मैम शायद। सब प्रेजेंट है। मैम यस मैम सब आज प्रेजेंट प्रेजेंट है है शायद। मैम। हाँ, Yes, उमंग ma'am, सहगल है, उमंग सहगल है। यस मैम मैम है। सिद्धार्थ जैन भी प्रेजेंट है मैम। सब प्रेजेंट। अच्छा, भाई बोल दिया सब प्रेजेंट है आज। उमंग भी है मैम, और मीटिंग में ही है। दिव्यांशु त्रिपाठी, पराग कपूर है, पराग कपूर, यस मैम है। सौरभ अग्रवाल, पराग समय। ठीक है। सीएस में भी एक बार चेक कर लो सभी हैं या नहीं हैं, मतलब 3 को छोड़ के, फिर आप लोग जा सकते हो लॉग आउट, मतलब लीव कर सकते हो मीटिंग को। और वन मोर ठीक है। थिंग, एक छोटी सी बात मुझे और करनी है कि एज यू आर अवेयर दैट हमारा सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है बाकी सब सेक्शंस के हिसाब से, और मैंने कोई एक्स्ट्रा क्लासेस अभी तक आपकी नहीं ली हैं, बट अब लेनी पड़ेंगी। तो आप लोग खुद मुझे बता दो कि आपके लिए क्या कन्वीनियंट रहेगा, इवनिंग्स में एक आधा घंटे की एक्स्ट्रा क्लास, या फिर कंटिन्यूएशन में जैसे सैटरडे को आपका मिनी प्रोजेक्ट है और उसके बाद मेंटरिंग है, उसके बाद आप फ्री होते हो, तो तब 1 घंटा आपको जो सूटेबल लगे आप लोग आपस में डिस्कस करो एंड लेट मी नो। मैम सैटरडे। सैटरडे इज फाइन। सैटरडे यस मैम। मैम, सैटरडे मैम, मैम सैटरडे, मैम वीकडेज में कर लो मैम, उसको ताकि से मैम पूछ लो सैटरडे यार, मैम अपनी मैम मीटिंग फ्री हो बता जाए। दो। अच्छा वो सैटरडे तभी खाली छोड़ दीजिए। हाँ तभी मैं मैम आप लोगों को सैटरडे। हाँ हाँ, सुनो सुनो सुनो, आप लोग, तभी मैंने आप लोगों को बोला आप लोग डिस्कस करो आपस में जो भी सही टाइम लगता है आप लोगों को। अभी जैसे सीप का आपका फ्री स्लॉट है, फ्री है ना अभी, आजकल क्लासेस नहीं हो रही हैं। हाँ मैम। यस मैम। हाँ तो उसमें शेड्यूल कर सकते हैं हम, अगर आप लोग उसके लिए रेडी हो तो। अभी मैं आपको कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि अभी जस्ट हमारे पास 1 ही महीना बचा है और उसी 1 महीने में हमको सब कंप्लीट करना है। बट आई एम नॉट गिविंग यू कि आप एक ही दिन में 10-10, 15-15 लेक्चर करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपको समझ भी नहीं आएगा। स्लोली हम एक एक करके चलते जाएंगे, ज़्यादा ये सिलेबस इकट्ठा नहीं होना चाहिए लास्ट में एक्स्ट्रा क्लासेस के टाइम। बस ये मेरा मानना है कि अभी अगर हम 3rd यूनिट तक भी कंप्लीट कर लेते हैं तो हम फिर वो कंटिन्यूएशन में डेली एक लेक्चर रख के कर लेंगे बाद में, पर करना पड़ेगा क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ज़रूरी है आगे हर किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तभी मैं आपको, ऐसा आपने देखा होगा, ऐसा नहीं पढ़ा रही हूँ कि हाँ मेरी तरफ से टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए, उसी हिसाब से हम पढ़ा के फ़ायदा है। ठीक है, तो आप लोग आपस में डिस्कस करो, क्लास को जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है उसको बता दो कि हम ऐसे इस टाइम फ्री हैं और इस टाइम हम पढ़ सकते हैं। लैब्स वगैरह में अगर आपको पढ़ना हो तो लैब के टाइम में मैं एक्स्ट्रा, जैसे लैब सभी की रहेंगी तो उस टाइम में हम ले सकते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, कोई इशू नहीं रहेगा तो मुझे बता देना। ओके, यू कैन लीव नाउ, यू कैन गो फॉर योर क्लास। सीप की क्लास वैसे तो नहीं हो रही है। अच्छा, एक अंकित सिंह है, उसने क्लास अटेंड किया आज? अंकित यस सिंह, मैम, यस मैम करिए। ओके ओके। अंबर भी है, वेदांत भी है, मीनाक्षी भी है। अंबर है? हाँ जी मैम। ओके, ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। We'll meet in the next class and I'll try to schedule a class before our next class, मतलब थर्सडे से पहले अगर कोई आपका फ्री स्लॉट होगा तो आई विल टेक। थोड़ा दिमाग में रखना कि हाँ क्लास हो सकती है। ठीक है, ओके मैम। ओके,
बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू मैम। ओके बेटा। मैम जी। मैम जो बता रहे हैं अभी लैब का, उसको ऑफलाइन कंपाइलर पे डाउनलोड करके हम लोग कर सकते हैं, हाँ हाँ, अगर जैसे आपका टर्बो सी सिट्रिक्स, या हाँ हाँ, किसी पे भी कर सकते हो। आपका इम्प्लीमेंटेशन यूनिक होना चाहिए, मतलब आपके थ्रू ही हुआ होना चाहिए। कोई ऐसा जैसे रहता है ना, हम सेव करते हैं फाइल को, तो आप अपने नाम से या रोल नंबर से फाइल को सेव करो, वो आपका यूनिकनेस बनेगा। ठीक है। और किसी से अपना कोड मत शेयर करो, किसी को फाइल मत दो, क्योंकि आप अगर शेयर करते हो तो आपका भी नुकसान होगा कि आपके मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो आप अपना जेन्युइनली अपना अपना काम करो, चाहे कहीं पे भी करो, स्क्रीनशॉट्स और आउटपुट तो मुझे चाहिए। और कोई भी डाउट आपको रहे ड्यूरिंग द लैब, जब भी इम्प्लीमेंट करो, कुछ भी एक मैसेज ड्रॉप करोगे मुझे, तो वी कैन कम ऑनलाइन एंड आई कैन हैंडल द क्वेरीज। ओके मैम, श्योर। ठीक है। अब जब जिनको भी लैब, वही बात है कि हम एक तो या तो टीम पे ऑनलाइन रह सकते हैं, आप बोलोगे तो मैं 2 घंटे के लिए ऑनलाइन रह सकती हूँ टीम पे, आप लोग भी रह सकते हो। और फिर मतलब जो आपका टीम मैंने क्लास शेड्यूल किया है आज का लैब का, तो उसमें मैं ऑनलाइन आ जाऊंगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। बट आई मे बी ट्रैवलिंग एट दैट टाइम 4 o'clock के अराउंड, आई मे बी कम्यूटिंग बैक टू माई होम, तो हो सकता है कि थोड़ा नेट का इशू हो, तो कोई बात नहीं, 4:30 तक मैं घर पहुंच जाऊंगी। 4:30 से 5, 5:30 तक हम लैब के क्वेरीज ले सकते हैं। ठीक है। जिसको भी कोई देखो इसमें हाँ, इसमें कैसे वर्क करेगा आपका जो ये है, कैसे वर्क करेगा कि आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो और मैं एरर चेक कर सकती हूँ या कोड चेक कर सकती हूँ। ओके मैम, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ ठीक है, जैसा आप लोगों को बेटर लगे वैसा।